کانگو کے عوام کے لیے سالار کا چہرہ استحصالی سامراج کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے لیے ایباکا کا قریبی اور قابل اعتماد ساتھی کا چہرہ تھا۔ ایباکا کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بھی غیر ملکی ادارے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سالار کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا۔ وہ اس سے بڑی خوشدلی سے ملے۔ سالار نے ایباکا کی آخری ای میل انہیں دے دی تھی جو اس نے سالار کو کی تھی۔ اس ای میل کا پرنٹ آؤٹ اگلے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شائع ہوا۔ افریقہ پیٹرس ایباکا کے جسم خاکی کے استقبال اور تدفین کی تیاریاں کر رہا تھا۔ امریکہ حکومت ابتدائی طور پر میت کو واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا پیٹرا ایباکا کی تدفین کے لیے اکٹھا ہونے والے لاکھوں کا مجمع ایک بار پھر سے کانگو میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر سکتا ہے۔ مگر اس سالار سکندر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایباکا کی فیملی کا دباؤ اور اصرار تھا کہ وہ ایباکا کی میت کی واپسی ممکن بنائے اور اس بات کی گارنٹی دینے پر تیار تھے کہ ایباکا کی تدفین پر امن ہوگی۔ سالار نے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ بات باور کرایا کہ ایباکا کی لاش کی باعزت واپسی کانگو کے عوام کے دلوں میں اس غصے کو ختم کرنے میں معاون ہوگی۔ امریکی حکومت 2 ہفتے بعد اس کی میت بھیجنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ورلڈ بینک کی انتظامیہ نے سالار کو ایباکا کی آخری رسومات میں شریک ہونے سے روکا تھا، جس کے لیے اسے ایباکا کی فیملی نے مدعو کیا تھا، اور سالار نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا تھا۔ امامہ بھی اس فیصلے سے ناخوش اور خوفزدہ تھی اور اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سالار اس کی منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے بچوں کو لے بیٹھ گئی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچوں کو لے کر فوری پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اس نے نفل پڑھنے کے بعد اس سے پہلا جملہ یہی کہا۔ امامہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ تم بڑے بے رحم ہو، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تم سے کم۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جبریل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک آیا۔ دروازے سے نکلتے اس نے امامہ کو خداحافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم واپس آ جاؤ گے نا؟ وہ برستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیر اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر چوما۔ انشاءاللہ۔ پھر جھک کر اپنی ٹانگ سے چپکی جبریل کو اٹھاتے اس کا منہ چوما اور کہا، اپنی ممی اور بہن کا خیال رکھنا۔ I always do بابا۔ بابا میں ہمیشہ ہی رکھتا ہوں، جبریل نے اسے یقین دلایا۔ سالار نے ایک بار پھر اس کا منہ چوما۔ I am proud of you۔ سالار نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خداحافظ کہا، دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو دیکھے بغیر۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار نے ایئرپورٹ پر ایباکا کی میت وصول کی۔ کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، جن کو چال لینے اور دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ وہاں تنہا تھا اور تنہا اس دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ دنیا میں کروڑوں ٹی وی اسکرینز پر لائیو نشر ہونے والے ایونٹ لاکھوں کے ہجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھا، اور بار بار وہ اس مجموعے کے سامنے بیٹھا تھا جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہاں تھا، کون تھا۔ اگر وہ مجموعے پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجموعے کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا، اور یہ احساس سالار کو اسٹیج پر بیٹھے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کے دل پر لاکھوں لوگوں کی ہیبت طاری ہو رہی تھی اور اس کی زبان پر قرآن آیات کا ورد تھا۔ امریکہ میں CIA اور ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں اسکرین پر نظر آنے والا وہ شخص ان سب کو اپنی ہیبت میں لے رہا تھا، جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ دلیری ہو تو ایسی، جرات ہو تو ایسی۔ وہ کنگ تھے، دم بخود اور مرعوب۔ وہ شخص پیٹرس ایباکا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نشست سے اپنا نام پکارے جانے پر اٹھ رہا تھا۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع اس کے لیے تالیاں بجا کر داد تحسین دے رہے تھے۔ وہ اس وقت پوری دنیا کی کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسٹیج کے بالکل اوپر کافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر CIA کے کچھ کمانڈز اس مجموعے کو ٹی وی اسکوپ سے مانیٹر کر رہے تھے، چندان بلیک باکس آس پاس کی عمارتوں کو۔ وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ چکا تھا، مجموعے کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآن آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ ٹی وی آن نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بے چینی کے پاس بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ سر در بیس وہ حرکت وجود کے ساتھ
बुत बनी उस शख्स को टीवी पर देख रही थी। अगर उसके वजूद में कई हरकत थी तो उसके दिल की धड़कन थी। सालार सिकंदर ने जिंदगी में बहुत सारी तकरीरें की थी, लेकिन उनमें से कोई तकरीर लाखों के इस मजमूए के सामने नहीं, जिससे वह इंसानी हमदर्दी के अलावा कोई ताल्लुक नहीं रखता था। वो मकामी जबान में उनसे बात कर रहा था और वो तर्जुमा होकर उसके साथ स्क्रीन पर आ रहा था। न इमामा को अंदाजा था और न सालार सिकंदर को कि वो आज अफ्रीका के सियाफा मजमूए के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा दोहराएगा। उसने हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह से तकरीर का आगाज किया, फिर कुरानी आयत सुनाई कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और उसके बाद उसने सिर उठाकर मजमूए को देखा। एक लम्हे के लिए भूल गया कि उसे क्या कहना था। उसने दोबारा रोस्टरम पर रखे उस कागज पर नजर दौड़ाई जिस पर उसने तकरीर के नुकात लिखे थे। वो हमेशा सिर्फ नुकात लिखकर ही तकरीर किया करता था। उसे अपने याददाश्त और इल्म पर ऐसा ही अंधा यकीन था, और अब वो बिल्कुल खाली जहन के साथ खोनिकों की तरफ मजमूए को देख रहा था जो उसके अगले अल्फाज के मुंतजर थे। उसके पिछले अल्फाज उनके सर से गुजरे थे। अफ्रीका के कबाइल जिस वक्त वहाँ इकट्ठे थे वो आज भी अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, न ही अल्लाह के वजूद को मानते और पहचानते थे। यही वो लम्हा था जब उसे आखिरी खुतबा याद आया था। मैं एक ऐसी तंजीम का हिस्सा हूँ जिन्होंने माजी में उस खित्ते और आप लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। आप लोगों को कब तक समझा गया, आप लोगों के हकूक छीने गए और आप लोगों के वसाइल पर नाजायज कब्जा किया गया। मैं इन सब के लिए आपसे मुआज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे मजहब का मानने वाला हूँ जो ये सब गुनाह करार देता है। मैं एक ऐसे मजहब का मानने वाला हूँ जिसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतों में खयानत से मना करते थे। वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करने की तलकीन करते थे जो अपने लिए। जिन्होंने बताया कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं। वो इंसानी मसावात की बात करते थे, जात पात रंग व नस्ल को नहीं मानते थे। सालार सिकंदर हाफिज था, मुबल्लिग नहीं था, मुकर्रर था, मुफस्सिर नहीं था। जिंदगी में कभी उसने अपने प्रोफेशन में मजहब को लाने की कोशिश नहीं की थी। वो आज भी इस नीयत से वहाँ आया था, पर उस वक्त जो ज़बान से निकल रहा था दिल की आवाज़ थी जो दिलों तक जा रही थी। अफ्रीका में गैर इंसानी हालात में रहने वाला सियाफा मजमा उसकी बातें सुन रहा था, और अब पहली बार सख्त और सामत खामोशी के साथ सुन रहा था, और उस खामोशी की बेख्तियार दाद तहसीन ने तोड़ा था। ये दाद सालार सिकंदर के जुमले पर नहीं मिली थी, ये दाद खातिमुन नबीन के आखिरी खुतबे के बुनियादी फलसफे को मिली थी। आज 1400 साल बाद भी वो पैगाम दिलों को तस्कीर कर रहा था, उन पर मरहम भी रख रहा था, इसलिए कि पैगाम इंसानियत के लिए था। हेडक्वार्टर्स में बैठे लोग अब भी गुंग थे। लाखों का मजमा उस आदमी को अपने रब में नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसकी जुबान से अदा होने वाले अल्फाज उस लाखों के मजमे को जैसे उसकी मुट्ठी में ले आए थे। सालार ने इसमें अज़म पढ़ते हुए अफ्रीका की नफ्स पर हाथ रख दिया था जो 1400 साल पहले भेजा गया था। इमामा भी दम बखुद थी। वो शख्स किस जगह खड़ा क्या दोहरा रहा था, ये लोग बाबा के लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं? जिब्राइल के सवाल पर जैसे चौंक पड़ी। इमामा उसका चेहरा देख कर रह गई। तालियों की गूंज अब थम रही थी, वो बहुत देर तक बजती रही थी, इतनी देर तक कि सालार को याद आ गया था कि उसे आज वहाँ क्या कहना था, लेकिन अब अपने भूले हुए अल्फाज से याद आने पर इतनी खुशी नहीं हुई। तासीर उसमें थी जो भूल कर याद आया था। मैं अफ्रीका में अपने मजहब की उन्हीं उसूलों और उसी सोच के साथ काम करने आया हूँ, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसूलों पर आप लोगों की फलाह के लिए काम नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन मैं उन ताकतों के हाथ मजबूत नहीं करूँगा जिनके खिलाफ पेटर्स एबाका ने जंग की और जिनसे लड़ती उसने जान दी। लेकिन एबाका ने अपनी जान इसलिए कुर्बान नहीं की कि वो अपने लोगों को बदतरीन हालत में जीता देखे। वो अपने लोगों के लिए ख्वाब देखता था, एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब। सालार सिकंदर अब उन्हें एबाका की आखिरी ईमेल सुना रहा था। लाखों का मजमूआ जो नाकाबिल तस्कीर पहाड़ लग रहा था अब तस्कीर हो चुका था। वो सालार के अल्फाज पर रो रहा था, तालियां बजा रहा था, उसके अल्फाज पर नारे लगा रहा था। सालार अपनी तकरीर खत्म करके रोस्टम से हट चुका था। वापस अपने नशिस्त की तरफ जाते हुए लाखों को मजमा सालार सिकंदर का नाम पुकार रहा था। आंसू सिर्फ इस मजमे की आंखों से नहीं बल्कि इमामा की आंखों से भी रवाना हो चुके थे। वो मजमुआ सालार को अपने निजात दहिंदा के तौर पर देखते हुए रो रहा था, और इमामा उस निजात दहिंदा की जान एक बार फिर बच जाने पर। आप क्यों रो रही है मम्मी? जिब्राइल ने कुछ परेशान होकर माँ को देखा। इमामा ने कुछ भी कहे बगैर उसे खुद से लिपटा लिया था। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर खुदकशी की ख्वाहिश आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह 17 साल पहले थी।
सालार सिकंदर ने लैपटॉप पर आखिरी ईमेल का जवाब देते हुए गहरा सांस लेते हुए इमामा की आखिरी फटकार सुनी। वो अब अपना काम निपटा चुका तो इमामा की तरफ मतवजा हुआ। वो परेशान थी, उसे अंदाजा था जो कुछ आज हुआ था उसके बाद उसकी ज़हनी तनाव का अंदाजा लगा सकता था। तुम ठीक कहती हो, सालार ने लैपटॉप बंद करके बेड की तरफ जाते हुए कहा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत है और मैं क्यों फिक्रमंद रही थी तुम्हारे लिए। वो उसके इतराफ पर बरहम हुई थी क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तुम कोई सुपरमैन नहीं हो जो तुम्हारे कमालात देकर तालियां बजाएंगे। तुम्हें कुछ होगा तो। वो बात करते करते रोहानसी हो गई, बात मुकम्मल न कर सकी। वो गहरी खामोशी के साथ उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने सिर उठाकर इमामा को देखा जो उसके बिलमुकाबिल खड़ी थी और वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। तुम ठीक कहती हो, जवाब पहले से मध्यम आवाज में आया था और बरहम हुई। मैं मजाक नहीं कर रही। उसे लगा जैसे हमेशा की तरह वो उसे जज कर रहा। अब अगर एक बार फिर तुमने जुमला दोहराया तो मैं उस कमरे से चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी हर बात अहमकाना लग रही है। यू आर राइट। वो इस बार जज होकर झलाते हुए हंस पड़ी थी, फिर उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। आखिरी खुतबा सुना रहे थे, आज तो सारा सुनाते, अधूरी बात क्यों की? वो अब उस पर तंज कर रही थी। हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए तो कहता हूँ तुम जो भी कहती रहो ठीक कहती रही हो, कल भी और आज भी। इमामा उसका मुंह देखकर रह गई। बैठे सिबाका का अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अमन के लिए लड़ा और न्यूयॉर्क की सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहा। उन्हीं ताकतों के हर कारों के साथ जिनके साथ तुम खड़े हो और जिनके साथ मिलकर तुम अफ्रीका की तकदीर बदलना चाहते हो। उसने सालार को वो आईना दिखाया जो सिर्फ उसे इमामा हाशिमी दिखा सकती थी। तुम समझते हो तुम्हें ये सब करने देंगे? तुम समझती हो मैं सब करना चाहता हूँ? उसने जवाबन उसी अंदाज में पूछा। वो बोल नहीं सकी। फिर इमामा ने पूछा, फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं पहला इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाना चाहता हूँ जो सूद से पाक हो लेकिन पूरी दुनिया के लिए बाज़ाब्ता काबिल अमल है, जो उसकी जगह लेने की सलाहियत रखता हूँ। जवाब इतना गैर मुतवक्का था कि वह हैरान से सालार सिकंदर का चेहरा देखकर रह गई। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले उस खामोशी को सालार ने तोड़ा था। एक काम दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम कर सकती हो सालार। इस बार गंग होने की बारी सालार की थी। एक जवाब नहीं, वो एतमाद था जिसकी उसे जरूरत थी। उसका खून बड़ा और शेरों के हिसाब से बड़ा था। थैंक यू। इमामा की तरफ देखे बगैर सर झुकाए सालार ने अपना तश्कर उस तक पहुंचा दिया। शुक्रिया की जरूरत समझ में नहीं आई थी लेकिन वो उसका चेहरा देखती रही, यूं जैसे मुंतजर थी कि वो कुछ कहे। तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिलाखिर सालार ने कहा। वो हंस पड़ी, यूं जैसे उसने कोई अजीब बात कर दी हो। तुम मुश्किलात की बात मुझसे कर रहे हो सालार? जिंदगी में बड़े बुरे दिन गुजारे मैंने। उसने गहरा सांस लिया। लेकिन वो बुरे दिन मेरी वजह से नहीं आए थे, अब शायद मेरी वजह से भी आए। सबसे मुश्किल चीज यही मेरे लिए, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके असर तुम तक और बच्चों तक आएंगे। वाहिद कमजोर करने वाली चीज यही है मुझे। तुम ये मत सोचो, जो करना चाहते हो करो, बाकी देखा जाएगा। जिंदगी उससे बदतर तो बहरहाल नहीं होगी जैसी मैं गुजार आई हूँ। इमामा को सब ये बात करते हुए अंदाजा नहीं था कि जिन मुश्किलात से सालार खौफजदा था वही मुश्किलात नहीं थी जो वो सोच रही थी। वो सिर्फ माली मसाइल के हवाले से उसे मतंबा कर रहा था। मैं सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। बचपन से दुनिया की हर नियामत मिली। फिर एक और वक्त आया जब अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकती थी। दूसरों के सर पर मोहताजी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, नौकरी करना पड़ी। वो वक्त भी गुजर गया। फिर तुम्हारे साथ गुजरे पिछले 7 साल में दुनिया की हर नियामत और आशाइश मिली, पहले से बढ़कर और बेहतर। लेकिन मैं कभी नहीं भूली, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चीजों की अहमियत नहीं होती, इंसान का कोई अमल बदल नहीं। तो जब तक बच्चे आए तो मेरे पास मुझे कोई परवाह नहीं। उसने सालार को देखा। वो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो उसे हौलाना नहीं चाहता था। एक कह करके बच्चे और वो भी कभी उससे छीन सकते थे जैसे पहले छीन लिए गए थे। और हर आजमाइश माल पर शुरू होकर माल पर खत्म नहीं होती। पहली बार सालार की नजर इमामा के हाथ में पहनी अंगूठी पर पड़ी थी जो उसने उसे शादी के तोहफे के तौर पर दी थी। वो बेहद हैरानी के आलम में उसे देखते कुछ बोलना भी भूल गया। उसका ख्याल था कि अंगूठी भी उस घर में मौजूद लॉकर में पड़े दूसरे जेवरात के साथ जल गई होगी। उस जगमगाती
बेश कीमत अंगूठी को अब उसकी मखरूती उंगली में सजा देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई थी, नाकाबिले बयान खुशी। उसने इमामा का हाथ थाम लिया। ये कहाँ से आई? गुफ्तगू का मौजू अजीब अंदाज में बदला था। इमामा हंसी और उसने हथेली पर ही अपना हाथ फैला दिया था। उसे सालार की खुशी और कैफियत का अंदाजा तो नहीं हुआ, लेकिन खुद उस अंगूठी को देखकर खिल सी गई। उसके साथ उसकी जज्बाती वाबस्तगी थी। वो देर से मिला था, लेकिन मुंह दिखाई का तोहफा था, और उसके हाथ में जो पहनी होती तो उसकी खूबसूरती देखने वालों को मबहूत कर देती थी। इतना तो इमामा जानती थी, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा उसे आज भी नहीं था। सालार ने उसके इयरिंग्स और चेन को नोट्स नहीं किया और वो अंगूठी पे अटक गया था। बस, तुमने मेरी इयरिंग्स और चेन नहीं देखी? वो सिर्फ दोनों चीजें हाथ से छूते हुए दिखा रही थी, किसी बच्ची की तरह, खुशी और जोश से। सालार ने मुस्कुराते उन चीजों को देखा और फिर इमामा के एकदम सब भूल भाल कर जगमगा उठने वाले चेहरे पर नजर डाली। तीनों चीजों को देखते उसे याद आया था, वो चेन डॉक्टर सप्ताली की दी हुई थी, और इयरिंग्स इमामा को शादी के दुआइफ में उसके सास ससुर ने दी थी, और वो अंगूठी उसे सिकंदर उस्मान की तरफ से मिलने वाली जायदाद में से एक प्लॉट को बेचकर खरीदी गई। उन तीनों में से कोई चीज सूद और हराम के पैसे से नहीं खरीदी गई थी, और वह जीवर वापस आ गया था। तुम क्या सोच रहे हो? इमामा ने उसे मुखातिब किया। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आया था। सालार गहरा सांस लेकर बात टाल गया था। उस अंगूठी की कीमत क्या है? पता नहीं। इमामा को एकदम से उसकी कीमत का ख्याल कैसे आ गया? ये अनमोल है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में। सालार ने उसका हाथ चूमा और वही जवाब दिया जो उस अंगूठी की पहनाते वक्त दिया था। वो हमेशा की तरह सरशार हुई थी। ये बहुत दफा पेश किया जाने वाला खराज तहसीन था, जो हर बार नया लगता था, क्योंकि हमेशा अच्छा लगता था। पैकिंग मुकम्मल हो गई? सालार ने मौजू बदल दिया। हाँ, मुकम्मल हो गई। इमामा उठ खड़ी हुई। वो 3 दिन बाद पाकिस्तान जा रहे थे। तुम कितने दिन ठहरोगे वहाँ? इमामा ने पूछा। 1 हफ्ता। सालार ने लेटे लेटे जवाब दिया। क्यों? तुम हमारे साथ वहाँ ज्यादा दिन क्यों नहीं ठहरोगे? इमामा को एतराज हुआ। 1 हफ्ता भी ज्यादा है मेरे लिए। काम का ढेर है यहाँ, और मुझे तुम्हारे वापस आने से पहले घर का बंदोबस्त भी करना है। मैं भी तुम्हारे साथ 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी, इमामा ने कहा। नहीं, तुम अब 1 माह बाद ही आओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। वहाँ घर का माहौल तब्दील होगा तो बहुत अच्छा महसूस करोगी। यहाँ बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है तुम्हें, सालार ने उससे कहा। मुझे बच्चों से ज्यादा तुम्हारी परेशानी होती है। एक बार फिर वार्डरोब के सामने खड़ी थी। सालार ने लेटे लेटे उससे देखा। वो वार्डरोब से टेक लगा उसे देख रही थी, और उसके अंदाज में कुछ था जिसने सालार को चौंका दिया। मेरी क्या परेशानी? उसने पूछा था। पता नहीं, बस मुझे डर लगता है। उसने आधी बात करके वार्डरोब दोबारा खोली। किस चीज से डर लगता है? सालार ने पूछा। इमामा ने वैसे ही खड़े खड़े गर्दन मोड़कर उससे देखा। किस चीज से डर लगता होगा मुझे? वो जैसे किसी साइकेट्रिस्ट से अपने मसले का हल पूछ रही थी। मेरी मौत से? और 2 साइकेट्रिस्ट बेहद बेरहम था। इमामा हिल न सकी। उसने जैसे नश्तर उसके जिस्म में मौजूद नासुर पर सीधा ही मार दिया था। ऐसे क्यों देख रही हो? सालार उसकी नजरों से उलझा था। तुम बहुत बेरहम और हमेशा से हो। तुमने सवाल किया था मुझसे, मैंने अंदाजा लगाया। सही अंदाजा लगाया क्या? वो जैसे दाद चाहता था। अब तुम्हें पता चला मैं तुमसे क्यों कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर आज भी मौत कशिश रखती है। वो जो कहना चाह रही थी वो कह न सकी, और जो कह दिया उसकी गलत होने का अंदाजा हो गया उसे। मौत से कौन फैसिनेट होता है मामा? कोई पागल होगा जो ऐसे सोचेगा, और एक वक्त में पागल था, अब नहीं हूँ। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। अब भी हो? इमामा कहे बिना न रह सकी। वो हंसा तयूं जैसे उसके जुमले से महसूस हुआ हो। तुम हमेशा ठीक कहती हो। उसकी हंसी ने इमामा को कम तपाया और उसके जुमले ने ज्यादा। वो वार्डरोब को पूरी कुव्वत से बंद करती हुई वॉशरूम में घुस गई। उसे पता था वो अब उसे जज करेगा और करता ही जाएगा। यह उसका जहनी थकन उतारने का एक तरीका था, उसे जज करना। कांगो बहरान और उससे पहले होने वाले वाकयात सीए के लिए सालार सिकंदर को उस लिस्ट में डालने का पास बना था जिन पर बाकायदा नजर रखी जाती थी। वो अफ्रीका में अब उनका सबसे अहम कारिंदा था। उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन उनका साथी नहीं था। उसने कांगो और अफ्रीका में एक बेहद नाजुक सूरत हाल में उन सबको एक शर्मनाक सूरत हाल से निकाला था। उसकी तकरीर में अपने इदारी और साम्राज्यिक कुव्वतों पर की जाने वाली तनकीद किसी को बुरी नहीं लगी।
अगर सूरत-ए-हाल कंट्रोल में आ जाती तो उससे ज़्यादा गालियाँ खाने पर तैयार थे, लेकिन अगर कोई चीज़ सालार सिकंदर की तकरीर में उन्हें काबिल-ए-एतराज़ लगी, वो अपने मज़हब और पैगंबर का हवाला था। वो अफ्रीका में बेशक उनके लिए अहम था, लेकिन कोई अहम तरीन शख्स भी इस्लामी सोच के प्रचार के लिए वर्ल्ड बैंक का ओहदा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सीआईए को सालार सिकंदर को मॉनिटर करते हुए अंदाजा हो गया था कि वो किसी इस्लामी मालियाती निज़ाम को कायम करने का सोच रहा है जो सूद से पाक हो। उनके लिए परेशान कुन बात नहीं थी, वो उसको एक ख्याली पुलाव से ज़्यादा अहमियत देने पर तैयार नहीं थे। अगर कोई बात परेशान कुन थी तो सालार का एकदम सामने आने वाला मजहबी शख्स था जो उनके नज़दीक अफ्रीका जैसी हसास जगह पर उनके लिए परेशानियां खड़ी करने का बास बन सकता है। उसे हर जगह मॉनिटर किया जाने लगा और पहली गैर मामूली सरगर्मी जो सीआईए ने रिकॉर्ड की थी वह अबाका की तदफीन के 3 हफ्ते बाद मस्कत में सालार सिकंदर की समंदर में एक लॉन्च पर 5 लोगों से मुलाकात थी, जिसमें से मस्कत की रॉयल फैमिली से था। सालार समेत तो 5 पुराने शनासा और दोस्त थे, एक यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थे। वो अपने अपने फील्ड के नामवर लोग थे। वो सब दुनिया के अंडर 40 ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में शामिल थे, जिनके बारे में पेश गोई थी कि वो 10 साल बाद दुनिया के मुमताज तरीन लीडर्स में से होंगे। उनमें से कोई बात सीआईए के लिए परेशान कुन नहीं थी, सिवाय उस आखिरी मुमासिलत के। सालार समेत तो 5 के 5 अफराद मुसलमान थे, बाअमल और हाफिज़े कुरान थे। वो पाकिस्तान में इमामा की क़याम का तीसरा हफ्ता था। वो शुरू के 2 हफ्ते लाहौर में डॉक्टर सब्त अली और सईदा अम्मा के पास गुजार कर बाकी 2 हफ्ते इस्लामाबाद रहने आई थी। वहाँ उनकी आमद का दूसरा दिन था जब सालार ने उसे अमेरिका में किसी पुराने दोस्त के बारे में बताया था, जब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में मुकीम था और सालार से मिलना चाहता था, उसे मुबारकबाद देने। कई सालों बाद साद अपनी फैमिली के साथ सालार से मिलने उसके घर आया था। वो मुकम्मल तौर पर बालिश था, उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी जिसको उसने रंगा नहीं था और बेहद महंगे ब्रांडेड शलवार कमीज में मलबूस था, लेकिन शलवार टखना से ऊपर थी। उसके साथ नकाब लिए उसकी बीवी एक 8 साल बच्चा और 2 बच्चियां भी थी। वो और उसकी बीवी सालार और इमामा से बड़ी गर्मजोशी से मिले। इमामा जानती थी साद सालार के शनासाओं में था, करीबी दोस्तों में नहीं, लेकिन उसके बावजूद साद अपनी गुपशुप और बुलंदबाग तहकीकों के दौरान सालार के उसके साथ अमेरिका में गुजरे हुए वक्त के बारे में ऐसे ऐसे किस्से निकाल कर सुनाता रहा जैसे वो और सालार गहरे दोस्त रहे हों। मुझे तो हमेशा से अंदाजा था कि सालार बहुत तरक्की करने वाला है, बस जरा किबला खराब था उसका। चाय पीने के दौरान उसने इमामा पर इंकशाफ किया, जिससे इमामा और सालार बेख्तियार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा कर रह गए। और अब देखिए भाभी कैसा बदला है, मेरी कोशिशें कैसे रंग लाई है, सब कह रहा था और सालार ने अपना कप रखते हुए उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले, मेरी कोशिशें कोई रंग नहीं ला सकी, उसका मुझे बड़ा अफसोस है, सालार ने जताने वाले अंदाज में कहा। साथ ने भी इख्तियार कहीं कहा लगाया, अरे हम पर कहाँ किसी का रंग चढ़ना था, हम पर तो अपना ही रंग बड़ा पक्का था। भाभी आपका शहर नाइट क्लब और डिस्को का बड़ा शौकीन था, मुझे भी खींच खींच कर साथ ले जाने की कोशिश करता था। नित नई लड़कियों से दोस्ती, बड़ी रंगीन जिंदगी गुजारी उसने। सालार ने ठीक कहा था, वो नहीं बदला था। पेशतर लोग खुद को बेहतरीन मुसलमान साबित करने के लिए दूसरों के हर ऐब और खामी को दिखाने और जताने की वबा में मुब्तला होते हैं, और उनका इस्लाम उन्हें सिर्फ मुकाबला और मुआवजा सिखाता है, पर्दा पोशी नहीं। वो अपनी बीवी के सामने साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कितने नेक शख्स की बीवी है। एहसास एक कमतरी की एक भयानक शक्ल होती है। सैयद अब अपने इंकशाफ से जैसे खुद ही महसूस हुआ था और प्लेट में एक नया कबाब रखते हुए हंस रहा था। इमामा का चेहरा फीका पड़ा था। भाभी बिल्कुल ठीक कह रहा है सर, मेरी काफी रंग बिरंगी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन सर को सिर्फ एक ही रंग की लड़की पसंद थी और मैं जरा शौकीन मिजाज था। डिस्को और क्लब्स आता जाता रहता था, लेकिन सर जाहिर है मेरे जैसा शौकीन मिजाज नहीं था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर ही रहना पसंद करता था। कबाब तो साथ ने प्लेट में रख लिया था, लेकिन प्लेट उसके हाथ से छूटते छूटते बची थी। सालार ने कई सालों बाद ऐसी कम ज़र्फ़ियत बेलिया हंसी का मुजाहिरा किया था जो एक ज़माने में उसका शनाख्ती निशान था। क्या नाम था उसका? हाँ, स्टेफनी। अब तो अलग से लेके रह गई होगी या वो भी नहीं। उसकी याददाश्त सफाकाना हद तक तेज थी और उस वक्त उसने साद का कत्ल ही कर दिया था। साद का
अंदर का सांस अंदर और बाहर का सांस बाहर रह गया। उस सब की इब्तिदा साद ने की थी और इंतहा अब सालार कर रहा था। साद जवाब क्या देता, उसका तो सांस लेना मुहाल हो गया था। इमामा उसकी बीवी के तासरात देख न पाई क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आंखें बताने के लिए काफी थी कि उस सालार के इंकिशाफात से खुश नहीं हुई थी। इमामा को भी सालार का ये जवाबी वार कुछ भाया नहीं। भाभी अब कुछ ले, उसने सूरत हाल को संभालते हुए बरवक्त साद की बीवी आलिया की तवज्जो उस गुफ्तगू से हटाने की कोशिश की। नहीं, बच्चे और ये ले रहे हैं, बस काफी है। हम कुछ देर पहले किसी लंच से आए हैं तो मुझे तलब नहीं। इमामा को आलिया का लहजा बेहद खुरदरा लगा। आप तो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखती थी ना? क्या सवाल था जो सद की बीवी की जुबान से इमामा के लिए निकला था। कमरे में एकदम खामोशी नहीं, सख्ता छाया था। वो तजस्सुस नहीं था, जवाबी वार था। साद से नहीं आया था, उसकी बीवी से आया था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। चाय का कप होठों से हटाकर इमामा ने बेहद मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। ओह अच्छा, मुझे उन्होंने ये नहीं बताया था। वो उसे बेनियाजी से साद की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो भाभी आखिर कोई इदारा ज्वाइन कर लेना। आपको तो बहुत ज्यादा इस्लाह और इल्म की जरूरत होगी। जब तक आप पाकिस्तान में हैं, आप मेरे साथ मदरसे चले। वहाँ दर्स कुरान भी होता है और रूहानी और अखलाकी तरबियत भी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस्लाम कबूल किए और कादानियत छोड़े 16-17 साल हो चुके हैं और मैं एक हाफिज़ कुरान की बीवी हूँ। इमामा ने उसकी बात बड़ी नरमी से काटी। और तो मैं भी हूँ, आलिया ने उसे अंदाज में कहा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पढ़ा होगा, मुझे पढ़ा है। भाभी आपको इस हवाले से जब भी आप मेरी मदद की जरूरत पड़े हम हाजिर हैं। अब मेल जोल तो होता रहेगा। मैं इंशाल्लाह इस साल तक निकाल के तबलीग के लिए कुछ दिन कांगो भी आऊंगा, तो आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। ऐसे भी अच्छा है हमारे बच्चे आपस में मिलते रहें। सर ने अपनी तरफ से बर वक्त मदाखलत करते गुफ्तगू संभालने की कोशिश की। जी भाभी ठीक कह रहे हैं, यह हमारे बच्चों को आपस में मिलते रहना चाहिए और हमें भी बहुत सी चीजों में आपको अपने बच्चों की तरबियत करते हुए हमारी रहनुमाई की जरूरत होगी। आलिया ने अपने शौहर की गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश की। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो मैं और इमामा जरूर आपसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें लगता है हमें इसकी जरूरत नहीं। इस बार सालार ने गुफ्तगू में मदाखलत करके जैसे एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। यार बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? तुम उनसे तो मिलवाते। मैं चाहता हूँ अहसन और जिब्राइल आपस में मुतारुफ हो। जी जी जरूर। बच्चे अभी मुलाजिम ला ही रहा होगा, उलान में खेल रहे हैं। उससे पहले वहाँ कोई याद बात होती। मुलाजिम के साथ इना और जिब्राइल कमरे में दाखिल हुए थे। साद ने दोनों बच्चों को बड़ी गर्मजोशी से प्यार किया, फिर जिब्राइल और अहसन को एक दूसरे से मुतारुफ किया। और दोनों एक जैसे थे, रिजल्ट तमीज़दार। वो लोग आध घंटा बैठे थे और फिर उन्हें अपने घर आने की दावत देकर चले गए। एक यादगार और खुशगवार मुलाकात नहीं थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी हर मुलाकात ऐसा ही तासर ले हुए रहने वाली थी। सालार एक हफ्ते बाद वापस कांगो चला गया था। इमामा इस्लामाबाद से लाहौर सालार के साथ आई थी। वहां से वापस इस्लामाबाद पर इमामा बच्चों को सिकंदर तैयबा के साथ बहुत सा वक्त गुजारने को मिला था। उसके जाने में अब एक हफ्ता बाकी था जब सिकंदर ने बड़े गौर खौज के बाद उसको हाशिम मुबीन के बारे में बताया था। वो मुझसे कई दफा मिलने आए तुम्हारा नंबर लेने के लिए, लेकिन मैं इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं पाता था कि तुम्हारा और उनका राब्ता करवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर परेशान हो। सिकंदर उस्मान उससे कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा मैं बहुत ज्यादती करूंगा तुम्हारे साथ भी और उनके साथ भी अगर उनकी ख्वाहिश पूरी न करूं। वो बेचैनी से उनका चेहरा देख रही थी। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता। सिकंदर ने धीमे लहजे में उससे कहा। उसके हलक में जैसे फंदा लगा था। वो ठीक कह रहा था, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता, लेकिन उसे तो भूल ही गया था कि उसके माँ बाप भी नहीं है। जिंदगी के 16-17 साल उनके बगैर गुजारे, उनके होते हुए भी वो आज भी उनसे मोहब्बत करती थी, आज भी उनके लिए जज्बाती थी, लेकिन पिछले चंद सालों ने सब बदल दिया था। अब मिलने का फायदा नहीं। सिकंदर को यकीन नहीं रहा था कि उससे मिलने से इनकार कर रही थी। वो तो सिर्फ अपने खानदान से मिलने के लिए मन्नतें करती रही थी। इनकार तो हमेशा दूसरी तरफ से होता था। माँ बाप के बारे में हम फायदे और नुकसान नहीं सोचते, सिर्फ हक और फर्ज सोचते हैं। उन्होंने इस बात भी ठीक कहा था। पापा मैं बस
मौलिक पल पर नहीं झूल सकती, मेरे बच्चे हैं। अब मैं अपनी जहनी उलझने उन तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश और पुरसुकून हूँ अपनी ज़िंदगी में। बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। किसी लानत मलामत का बोझ नहीं उठा सकती अब। किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत भी नहीं रही अब। बस जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं वापस पलट कर नहीं देखना चाहती। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसकी आंखें कब बरसना शुरू हुई। इमामा वो मुसलमान हो चुके हैं। वो जामत हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रद्द-ए-अमल दे। खुश हो वो खुश थी, रो पड़े वो पहले ही रो रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करे वो हमेशा करती रहती थी। वो मुसलमान न होते तभी मैं तुमसे कहता कि उनसे मिलो। बास गुनाहों की सजा जब अल्लाह देना चाहता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। सिकंदर ने उन्हें समझाया था। वो उसके अंदर की कैफियत से बेखबर था। सवाल माफी का तो था ही नहीं। उनका सामना इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने वजूद को बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को समेटा था। उसने सिकंदर उस्मान से बहस नहीं की। वो अगले दिन हाशिम मुबीन से मिलने पर भी तैयार हो गई, लेकिन उस रात सो न सकी थी। वो अगले सपहर उनके घर आए थे। वो कमरे में आई तो बाप पर पहली नजर पड़ते ही रोई नहीं, रोने का तहिया किए हुए थी। वो बेहद ज़ईफ लग रहे थे। एक तनतनी वाला वजूद नहीं था जिसे वो सारी जिंदगी डरती रही थी। हाशिम मुबीन ने उन्हें गले लगाया। वो नम आंखों से बड़े हौसले से उससे मिलकर अलग हुई थी। पहले की तरह उससे लिपटी नहीं रही थी। और फिर वो आमने सामने सोफा पर बैठ गए। कमरे में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों थे और तवील और गहरी खामोशी। फिर उस खामोशी को हाशिम मुबीन की हिचकियां और सिसकियों ने तोड़ा। वो अब बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। इमामा उन्हें चुपचाप देखती रही। वो भी बेआवाज रोती रही। उसकी आंखों से बरसने वाली आंखों उसकी ठोड़ी से टपकते उसकी गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। वक्त वाकई बड़ा जालिम होता है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया अपने आप पर, अपने खानदान पर। पता नहीं कैसे हो गए सब कुछ। हाशिम मुबीन रोते हुए एतराफ कर रही थी और इमामा को याद आ गया था। उन्होंने एक बार उससे कहा था कि जो कुछ वो करने जा रही थी वो उस पर बहुत पछताएगी। एक वक्त आएगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो वापस पलट कर उनसे माफी मांगने आएगी और तब वो उसे माफ नहीं करेंगे। मुझे लगता है इमामा मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, हाशिम मुबीन ने रोते हुए कहा। मुझे बद्दुआ का कभी ख्याल भी नहीं आया अब्बू, आपके लिए क्या किसी के लिए भी नहीं। उसने मिलाकर हाशिम मुबीन से कहा, आपने देर से किया लेकिन सही और अच्छा फैसला किया। एक जुमला कहते इमामा को बेहद तकलीफ हुई थी। उसे वसीम याद आया था। उसे अपना वो खानदान याद आया था जो सारा गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिम ही रहने वाला था। वापस तो या वो पलटी थी या हाशिम मुबीन। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। बहुत वक्त लगा दिया मैंने तुम्हारे सामने आने में, लेकिन बस माफी मांगना चाहता था। तुम्हारी एक अमानत थी मेरे पास, वो मरने से पहले तुम्हें देना चाहता हूँ। वो अब अपने साथ लाए बैग से एक लिफाफा निकाल कर उसे दे रहे थे। ये क्या है? उसने लिफाफा थामे बगैर उससे पूछा। जायदाद में तुम्हारा हिस्सा। उस हिस्से के लिए तुम्हारे भाइयों को खफा कर दिया मैंने। वो ये भी लेना चाहते थे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी चीज उन्हें नहीं दे सकता था। सारी उम्र तुम्हें कुछ नहीं दे सका। कुछ तो देना चाहता था तुम्हें मरने से पहले। वो उनकी बात पर रो पड़ी। अब्बू इसकी जरूरत थी मुझे, मैं इसे लेकर क्या करूंगी? अगर मेरे भाइयों को मेरा हिस्सा देने से उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई गुंजाइश निकलती है तो उन्हें दें। हाशिम मुबीन ने बेहद मायूसी से नफी में सर हिलाया। मैं अब उनके लिए गैर मुस्लिम हुई मामा। वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंक चुके हैं, जैसे कभी मैंने तुम्हें निकाला था। शिकस्त खोरदा अंदाज में कह रहा था। फिर आप मेरा हिस्सा बेचकर अपने लिए कोई घर ले लें, कोई जगह। मेरे पास अब सब कुछ है। इमामा ने लिफाफा पकड़कर उनके बैग में वापस रख दिया था। तुमने मुझे माफ नहीं किया, उन्होंने रंजीदगी से कहा। मैं आपको माफ करने वाली कौन होती हूँ अब्बू? ये फैसला तो आपके लिए अल्लाह ने करना है। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आपको माफ कर दे। बड़ी माफी तो वहां से आनी चाहिए। वो सर झुकाए बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम हमसे मिलती रहोगी ना? अजीब आस और हसरत थी। इमामा ने सर हिला दिया था। माँ बाप का यह हाल से दिल गिरफ्तार किए हुए था। हाशिम मुबीन के चेहरे पर उस मुलाकात के दौरान पहली बार मुस्कुराहट आई थी। मैं जायदाद का हिस्सा तुम्हारे बच्चों के नाम कर देता हूँ इमामा। अब्बू मैं आपकी जायदाद और रुपए पैसे में से कुछ भी नहीं लूंगी। मैं लूंगी भी तो सालार वापस कर देगा, उसने हाशिम से दो टोक अंदाज में कहा था। हाशिम मुबीन कुछ देर बैठे रहे, फिर उसे साथ लेकर उसकी माँ से मिलवाने ले गए। सिकंदर और उनकी बीवी भी साथ गए थे। वो एक और जज्बाती मुलाकात थी। तुम अब बहुत बहादुर हो गई, उसरा साला ने उससे कहा। उसने अपने उस
दिन की रवादात सुनाई थी उसे फ़ोन पर। कैसे? वो उसके तबसरे पर हैरान हुई। तुम आज एक बार फिर नहीं रोई? मुझे अपने पेरेंट्स से मुलाकात के बारे में बताते हुए वो चुप रही। फिर उसने सालार से कहा, आज एक और बोझ मेरे कंधा और दिल से हट गया है। बहुत देर से सही, लेकिन अल्लाह ताला ने गुमराही से निकाल लिया है मेरे माँ बाप को। दुआएं कबूल होती है सालार, देर से सही लेकिन कबूल हो जाती है। इमामा के लहजे में अजीब तमानियत थी जो हजारों मील दूर बैठे सालार ने महसूस की। तुम्हारी हो जाती है, उसने मध्यम आवाज में इमामा से कहा। क्या तुम्हारी नहीं होती? उसने जवाबन पूछा। मेरी भी होती है लेकिन तुम्हारी ज्यादा होती है, वो कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इमामा ने जवाबन कहा। वो हंस पड़ा। तुम मेरे पेरेंट्स को ओल्ड होम से निकाल कर उन्हें कोई घर ले दो। उनके पास मेरी जायदाद का जो हिस्सा है उसे बेच कर। बेशक छोटा घर हो, लेकिन मैं उन्हें ओल्ड होम में नहीं देख सकती। मैं पापा से कह दूंगा, वो कर देंगे काम। उनका ख्याल भी रखेंगे। तुम इस्लामाबाद में मुस्तकिल रहना चाहती हो तो रह सकती हो इमामा, तुम और बच्चे वहाँ। इमामा ने इसकी बात काट दी। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और उसी तारीख को वापस आ रही हूँ।